Okay, students, so let us start with today's lecture, that is lecture number 10. In this, we will understand value added method for calculation of what? For calculation of national income. See, अभी तक अपन ने दो methods cover कर ली हैं, that is first was income method, second I told you expenditure method, okay. फिर अब जो आपके पास बचा हुआ है that is value added method, ओके इनकम मेथड जब अप्लाई करते थे तो हमारे पास आंसर आता था एनडीपी एट एफसी एक्सपेंडिचर व्हेन वी अप्लाई इट विल नॉर्मली गिव यू जीडीपी एट एमपी नाउ वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करोगे दैट विल आल्सो गिव यू जीडीपी एट एमपी मेक श्योर स्टूडेंट्स दो मेथड ऐसी हैं जिनके फाइनल आंसर जीडीपी एट एमपी बनेंगे दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल एज value added method. So let us start with the value added method. See, word से समझ में आ रहा है कुछ value addition करा है. Okay. So what value addition we have done? First and foremost, it is measuring the national income by estimating contribution of each individual enterprise at a particular stage of production in domestic territory of country. ओके इसीलिए इसका आंसर जीडीपी एट एमपी इट इज नॉट एनी नेशनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज कैलकुलेशन इज डन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री अगेन रीड द डेफिनेशन मोर क्लियरली it is measuring national income by estimating contribution of each individual enterprise at the particular stage of production in the domestic territory of the country in a accounting year. You will be getting more when you will understand. See, every industry is adding some or another value. ऐसा नहीं कि कोई industry value नहीं add कर रही है. Take the example of agriculture industry, that is also adding a value. वो भी value add कर रही है product में. Take the example of industrial sector, they are also adding some value. Similarly, your particularly service sectors, they are also adding some or the other value towards the product. Now, what are these value addition? Let us understand in detail. See what these steps is involved in production method. First and foremost, हमें ये identify करना है कि what are our production units. We have to identify the production units that will be given. Okay, you do not have to worry. Second, उसने बोला calculate what output they have produced. Second, what is their intermediate consumption. Now I have told you about the goods. Goods यहाँ तो क्या होगा final, यहाँ तो क्या होगा intermediate. Remember intermediate and final goods. Yes, तो sir. आपके पास यहाँ पे ये देखना है कि मेरे पास final goods की यहाँ पे value आ जाए and the intermediate goods value shall come here. Okay, then we will calculate value added by the firms until unless मेरे पास final और intermediate की value नहीं होगी मेरे पास value addition नहीं आएगा. Then you have to deduct this calculation of depreciation and calculation of NIT. This will be done afterwards. But major task is what? Major task is final and intermediate because ये सब चीजें तो आपने पहले भी करी हैं. Depreciation आपके पास है, NIT आपके पास है, NFIFA आपके पास है. You only have to understand what is the final goods and what are your intermediate goods. Okay. So let us start with identifying first step, that is identifying all production units. See, all I said primary हो, secondary sector हो या फिर tertiary sector हो, every sector is providing some of the other value. Suppose take the example of primary. क्या कर रहा है? It is exploiting the natural resources including all agriculture and allied activities. नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहा है एक फाइनल प्रोडक्ट में. सेकेंडरी इट इज कन्वर्टिंग वन गुड इनटू अनदर. प्राइमरी से प्रोडक्ट्स लिए एंड देन इट इज कन्वर्टिंग दोज प्रोडक्ट्स इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. कमिंग टू टर्शरी, it provides services for primary and secondary sector. They are also value addition. अगर ये services नहीं provide करेंगे तो आपको वो value addition नहीं मिल पाएगा. Take the example of transport, communication, insurance, banking. These are also providing certain type of services as well as value addition. Now, first
is gross value of output. कैसे निकालेंगे? We will multiply goods produced by the firm by their market price. Take a simple example कि भैया एक फार्मर है, अगर मैं प्राइमरी का ले लूं, टेक द एग्जांपल, एक फार्मर है, उसने अपने फील्ड पे 100 केजी राइस उगाया है. He has grown 100 kg of rice. Now I will multiply this final output with the market price of per kg rice. मान लो market price per kg rice का 10. So overall value of output is how much? 1000. 1000. क्या लगाया फॉर्मूला? The quantity of final output multiply by the market price of that particular. सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आइडेंटिफाई करना है ना? Identify, it will be given that primary का इतना, you will be able to understand when you will, I will be ग्रॉस वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी ना? ग्रॉस वैल्यू निकालनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? It is money value of raw materials used in the process of production, including non-factors such as raw material. जो raw material आपको लगा है, so as to convert that raw material into finish. Finish तो आपकी क्या बन जाएगा? Finished product will become your gross value added. That finished goods is your sales rather. And the raw material will become what? Raw material will become intermediate goods, जिसको हम deduct करेंगे आगे जाके. Now let us understand easily the gross value added and intermediate consumption. Now सबसे पहला मेथड क्या है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स का? जो अभी बताया, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, अभी करा. ओके, नेक्स्ट इज you will add the domestic sales of household, government, business firms and exports. ये वही वाला जो एक्सपेंडिचर का था, हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस फर्म्स का एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट इसमें से हम माइनस कर देते थे. या फिर यू हैव अनदर वे. दैट्स व्हाई यहाँ का मेथड और उसका आंसर जो रहता है ना, वो लगभग सेम होता है. इसीलिए जीडीपी एंड एमपी दोनों में आता है, क्योंकि यहाँ पे थे वापस 4 सेक्टर्स आ गए, और अपन ने ये 4 सेक्टर्स किसमें कंसीडर करे थे? एक्सपेंडिचर मेथड में वी हैव कंसीडर्ड दीज 4 सेक्टर्स. नाउ अनदर मेथड, कभी कभार वो प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी की सेल दे देंगे. सो यू विल एड ऑल दी सेल्स ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स. अगेन यू विल गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ सेल्स. अभी अपन जीडीपी एट एमपी पे नहीं पहुंचे. ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड. बस. ओके, तो पहला मेथड क्या है? सी दीज आर दी ओनली आइडेंटिफिकेशन. बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी दिया हुआ है, तो बस वो एक ही मेथड पे फोकस करना. वो अलग अलग मेथड हर जगह में नहीं देंगे. यहाँ तो प्राइस क्वांटिटी दे दिया, या फिर वो चारों सेक्टर्स की सेल्स दे देंगे, एज वेल एज एक्सपोर्ट्स दे देंगे, और यहाँ तो फिर वो 3 सेक्टर्स. सी दीज 3 सेक्टर्स आर डिफरेंट एंड दीज 4 सेक्टर्स आर डिफरेंट. ओके, ये जो 4 सेक्टर्स हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, बिजनेस फर्म है, एक्सपोर्ट है. बट हियर प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इट इज बेसिस ऑन द वर्क, प्रोडक्शन एंड ऑन द वर्क, कि भैया कौन प्राइमरी में इन्वॉल्व है, कौन सेकेंडरी स्टेज पे, कौन टर्शरी में इन्वॉल्व है. सो दीज आर द वेरियस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल्स. अब सेल ऑफ ऑल द 4 सेक्टर्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेल टू अदर फर्म, सेल्स टू हाउस होल्ड, टू द गवर्नमेंट, ये अपन ने निकाला. अभी वाला मेथड चल रहा है, मतलब सारे सेक्टर्स के अपन ने सेल क्या कर दी है? प्लस. अब इसके बाद आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक. याद आ रहा है अपन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में डेल्टा स्टॉक प्लस करते थे, तो डेल्टा स्टॉक यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस. चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. Okay, after change in stock you will add this. After change in stock you will get value of output. Okay, मैंने अभी वही बोला था कि सेल से कभी नहीं होता है. कभी कभार क्या होता है, आपका कुछ स्टॉक बच जाता है, तो उसको भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में जोड़ देंगे. दैट वाज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. आप करोगे, दैट विल बी गिवन सारे सेक्टर्स की सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ ऑल द सेक्टर्स. ऐसा कभी कभार होता है कि चेंज इन स्टॉक अलग अलग देते हैं,
तो अलग अलग सारे सेक्टर्स का प्लस करना पड़ेगा. ओके, देन यू विल गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट. After getting value of output, what is your next step is you have to deduct intermediate consumption, जो होता है intermediate goods. अब या तो वो imports के फॉर्म में होगा, जैसे अपन ने कहा था कि imports माइनस होते हैं, पर यहाँ वाली स्टेज पे import मत माइनस करना. You will deduct imports in this stage. सेकेंड, परचेज फ्रॉम अदर फर्म्स. यहाँ तो फिर ये हो जाएगा डोमेस्टिक परचेज फ्रॉम दी अदर फर्म्स. तो ये दोनों आइटम्स आपको रिफ्लेक्ट किए जाएंगे एंड देन यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट. जैसे ही आप ये डिडक्ट करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जीडीपी एट एमपी. क्या आ जाएगा आंसर? जीडीपी एट एमपी. दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला. अगर बेसिक फॉर्मूला अगर रटना हो तो बेसिक फॉर्मूला यही है कि वैल्यू एडेड, और इट इज नोन एज जीडीपी एट एमपी, और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज वीओ, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज आईसी. ओके, इसके ऐसे नाम यही है, वैल्यू ऑफ एडेड, जीडीपी एट एमपी, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. सिंपली वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप क्या करोगे? डिडक्ट. एज सुन एज यू डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यू विल गेट जीडीपी एट एमपी. इज दिस क्लियर ऋषिका? यस सर. चलिए, देन अभी आपके पास अब नेशनल इनकम तक पहुंचना है, तो प्रोसीजर तो वही, जीडीपी एट एमपी से अगर मुझे किस पे जाना हो, एनएनपी एट एफसी. ये तो अपन ने बचपन से सीखा हुआ है कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन क्या करूंगा? माइनस. एन फीफा क्या होगा? प्लस. और एनआईटी क्या होगा? माइनस, बिकॉज मार्केट प्राइस से किस पे जा रहे हो आप? फैक्टर कॉस्ट. So again, that GDP at MP has been converted into net national product at factor cost, that is NNP at FC. Okay. अब another way, एक्सपोर्ट आपके पास वही का वही है, सब चीजें सेम है. चेंज इन स्टॉक अपन ने प्लस कर दिया. आई विल गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट. आफ्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या माइनस करूंगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करूंगा. इंटरमीडिएट कंजम्पशन किससे बनेगा? इंपोर्ट एज वेल एज परचेज. फिर मेरे पास क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी. एज सुन एज जीडीपी एट एमपी इज इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे हम जीडीपी एट एमपी तक पहुंच गए, अब मुझे किस पे पहुंचना है? सीधा एनएनपी एट एफसी. लगाओ बेसिक फॉर्मूला, ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन माइनस, एन फीफा प्लस, एंड एनआईटी माइनस. दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. Kindly take a screenshot, then you will be able to understand that how to go from value addition towards the national income. Okay, Rishika? हाँ सर. Yes sir. चलिए, moving further. Now, what precautions I have to take? See, अभी तक मैंने हर मेथड के बाद उसके precautions बताए हैं. So let us understand what precautions I have to take. फर्स्ट प्रिकॉशन क्या करना है आपको? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड. हमें क्या करना है? सारे के सारे फर्स्ट हैंड गुड्स लेने हैं, सेकेंड हैंड गुड्स कंसीडर नहीं करने हैं. नॉट इंक्लूडेड बिकॉज जब वो पहली बार बिक चुका है, वो उस करंट ईयर के प्रोडक्शन का पार्ट है. अभी तो वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं ना. मान लो मैंने आज एक कार परचेज करी, पर वो सेकेंड हैंड कार है, तो वो सेकेंड हैंड कार क्या अभी प्रोडक्शन में आई थी कि पहले ही बन चुकी थी? पहले ही. तो वो जब बनी तो उस ईयर के प्रोडक्शन में उसे कंसीडर कर चुके हैं, तो इस ईयर के प्रोडक्शन में उसे कंसीडर नहीं करेंगे. सेकेंड, कमीशन एंड ब्रोकरेज. बट याद रखना, सेल जो भी हो, भले सेकेंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, उस पे जो कमीशन और ब्रोकरेज कमाया है वो हम इंक्लूड करेंगे. क्यों? क्योंकि वो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज इज अ सर्विस एंड दैट इज नॉट सेकेंड हैंड सर्विस, दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो उसको हम इंक्लूड करेंगे. आई बात समझ में? यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. बच्चे वहां पे बोलते हैं कि सर जो सेल हुआ उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस पर्सन ने उस पर कमीशन कमाया उससे आप कंसिडर कर रहे हो. अरे कमीशन इसलिए कमाया बिकॉज ही हैज गिवन सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज.
मैंने सपोज एक इंश्योरेंस या किसी एजेंट को पकड़ा जो इन सब मामलों में कर रहा है, एजेंट ने अपनी सर्विस बार बार देने के राजी, पर एवरी टाइम ही इज गिविंग अ फ्रेश सर्विस, वो अलग सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जब भी वो किसी को वापस डील कर रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग यू अ न्यू सर्विस। दैट्स वाई जो कमीशन और ब्रोकरेज कमाएंगे, ऐसे तो प्रॉपर्टी के तो बहुत सारे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी में तो आए दिन एक प्रॉपर्टी परचेज करी, वही प्रॉपर्टी बेची, एक प्रॉपर्टी परचेज करी, वो प्रॉपर्टी बेची, तो ब्रोकरेज तो कमाएगा ना ब्रोकर बीच में। वो जो ब्रोकर कमा रहा है उसे हम इंक्लूड करेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट प्रिकॉशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। क्या क्या इंक्लूड नहीं करनी है? फर्स्ट एज पर्टिकुलरली नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके, दैट इज नॉट मेंशन। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। वो तो पहले ही बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स हमारे कभी भी मेंशन नहीं Minus. होते हैं, उसको हम वैसे ही डिडक्ट कर लेते हैं। डोमेस्टिक सर्विसेज आई विल क्लियर आउट। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अब याद रखना, जो सेल्फ के लिए कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करा है उसे आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो आपका आउटपुट ही माना जाता है। टेक द एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फार्मर ने 100 केजी का आउटपुट प्रोड्यूस करा, लेकिन उसने अपने होम कंजम्पशन के लिए 10 केजी निकाल दिया और 90 केजी वो मार्केट में सेल कर आ गया, तो ये तो मेरे पास सेल्स के रूप में आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 10 केजी विच ही हैज यूज्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशन? What about this 10 kg Production production में for होगा self वो include. consumption? इसके लिए जो ये 10 kg है ना, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? बिकॉज दिस इज सेल्फ कंजम्पशन एंड वो प्रोड्यूस हुआ है, वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितने में आपने 90 केजी को बेचा है उसके अकॉर्डिंग 10 केजी की वैल्यू निकालो एंड देन यू हैव टू ऐड इन दी सेल्स इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका था कि बच्चे बोले कि सर ये तो कभी सुना ही नहीं, इसीलिए कहा था जब भी आप कोई सा भी मेथड करो उसके प्रिकॉशंस कभी मत भूलना। उसमें सेल्स भी दिया हुआ था और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी दिया हुआ था, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको कंसीडर करना है और दोनों को ऐड करने के बाद आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पे पहुंचते। क्लियर है? Yes, sir. नाउ मूविंग फर्दर, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। भैया ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डबल काउंटिंग का मतलब कैसी? डबल काउंटिंग का मतलब है एक से ज्यादा बार काउंट करना। वर्ड का मतलब है डबल काउंटिंग, मतलब एक से ज्यादा बार वो चीज काउंट कर रहे हो। तो वो क्यों हो रही है? मान के चल इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एक से ज्यादा बार काउंट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी नोन एज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, बट इट इज हैज टू बी अवॉइडेड। क्यों उसको अवॉइड करना है? बिकॉज अगर उसको अवॉइड नहीं करा तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी नॉट एक्चुअल वैल्यू। करेक्ट। ओके, सो उसको हटाने के लिए पहला मेथड क्या है भैया? फाइनल आउटपुट मेथड। मतलब हम कंसीडर क्या करेंगे? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी विल इग्नोर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा है? ओनली फाइनल वैल्यू। अब इसको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाता हूँ, वी विल अंडरस्टैंड हियर एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। फार्मर है, उसके यहां से आपने सपोज वीट, छोटे में समझना कि फार्मर का प्रोडक्शन वीट था, वीट को हमने कन्वर्ट किया फ्लोर में। फ्लोर मतलब आटा, मैदा। अब ये मैदा गया बेकरी में एंड दैट फ्लोर हैज बीन पर्टिकुलरली कन्वर्टेड इनटू केक। ओके, अब केक क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है कि इंटरमीडिएट? फाइनल। तो जब केक का प्राइस मैंने ₹150 रखा है तो इस 150 में फ्लोर और व्हीट की वैल्यू भी आ गई होगी। हाँ। तो अगर आपने सपोज इसकी भी सेल्स ले ली, मान ले मैंने ये जो मिल वर्कर है इसकी भी सेल ले ली, मान ले फ्लोर की सेल थी सपोज 100 और व्हीट की सेल यहाँ पे थी 50, तो 150 के साथ अगर मैंने ये 100 और 50 भी ऐड कर लिए तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। 300। हाँ, तो डबल काउंटिंग हुई कि नहीं? क्योंकि ये फ्लोर हो तो गई। ऑलरेडी ऐड है ना क्या केक के अंदर, ये व्हीट तो ऑलरेडी ऐड है ना केक के अंदर। सो हमें क्या कंसीडर करना है? वी हैव टू ओनली कंसीडर फाइनल द गुड्स। फाइनल गुड। ओके,
सेकेंड मेथड, अब उसको अवॉइडिंग, ये वाला फर्स्ट मेथड था कि हमको किसको कंसीडर करना है, फाइनल। दूसरा मेथड जो अपने को पता ही है, वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हम समझ ही रहे हैं, दैट इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इज काउंटेड। तो हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, वैल्यू एडेड कंसीडर करना है, और कौन सा हम लगाएंगे, दैट इज फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ये तो बेसिक जो अपन का वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट Intermediate कंजम्पशन goods. या कंजम्पशन। Okay, so you हाँ, have to consider only here these two method. फाइनल आउटपुट मेथड में अपन इतना नहीं देखते हैं, अपने कोर्स में क्या है, वैल्यू एडेड। value added method. Now let us move to one practical question and then we will end up this session. चलो, an economy has two forms, उस इकोनॉमी में सिर्फ दो फॉर्म्स हैं। फाइंड आउट द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड बी। सेकेंड, जीडीपी एट एमपीवी निकालना है। नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन। हियर एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए इज गिवन, import of firm A is given, sales to household by firm A is given, sales to firm B by firm A, sales to firm A by firm B, these are intermediate, मतलब ये आपस के हैं, और हाँ, sales to household by firm B। ओके, ये आपके पास ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको क्या क्या चीजें देखनी है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, and then you will go for value of output, and then you will get intermediate consumption, and then it is value added by GDP firm. and MP. Now let हाँ, us start with firm A first of all. Sales कितनी है उसकी, कैसे देखो, सबसे 600 पहला और 180. हाँ, 600, 180 as well as 90 also। क्यों, क्योंकि सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, A. हाँ, 600 तो एक्सपोर्ट हुआ, जो हाउस होल्ड को सेल करा वो भी कंसीडर करेंगे, और जो फर्म बी को, मैंने फर्म बी को भी सेल करा ना, मान ले ये दोनों आपस में है, तो इन्होंने बोला कि भैया मेरे को कुछ गुड्स चाहिए था, तो उसने उसको बेच दिया कि लिए जा भले, कोई इश्यू नहीं है, तो ये भी तो उसकी सेल्स हुई ना, तो सेल्स पूरी आ गई। अब चेंज इन स्टॉक 870. किया गया किसी का, नहीं, तो अपन क्या लेंगे उसको, 0. एज इट इज 0, एज इट 0 ले लिया, तो अपने पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 870। अब 870. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैं क्या क्या कंसीडर करूंगा, एक तो बोला था मैंने इम्पोर्ट, Import. ओके, वो तो 200 हो गया, पर एक और चीज देख यहाँ पे, दैट इज सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी विच इज 50। तो ये 50 क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि अगर फर्म बी के लिए वो सेल्स है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सेल किसको करा, फर्म ए को, तो फर्म ए ने क्या करा होगा, Raw material buy. परचेज। ओके, सो सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, तो फर्म बी ने क्या करा, सेल्स, लेकिन फर्म ए ने क्या करा, Purchase. परचेज। तो यहाँ पे अभी हमने बोला था कि इंपोर्ट और परचेज दोनों माइनस होते हैं, जब फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे अपन ने माइनस करा 200 माइनस 50, देन व्हाट इज योर फाइनल Minus 150. दैट इज 620। 620. अब फर्म बी का देखो, फर्म बी के लिए एक्सपोर्ट और ये सब तो नहीं दिए हुए हैं, सीधा क्या बोला कि सेल्स टू हाउस होल्ड इतना है, और एक और चीज, जैसे अभी मैंने बोला कि इसके लिए सेल्स था, लेकिन इसके लिए क्या था, परचेज। Purchase. तो यहाँ पे इस ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, इसको बोलते हैं इंटरलिंक्ड ट्रांजेक्शन, जो यहाँ के लिए सेल्स है, लेकिन यहाँ के लिए क्या बन रहा है, वो Purchase. परचेज। तो ये 200 तो उसकी डोमेस्टिक सेल्स थी, तो यहीं से दिख रही थी। अब चेंज इन स्टॉक, इसका भी मेंशन नहीं है, इसका भी चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है, और आ जाएगा दैट इज 250। 250. नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ये भी देखो ये कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, तो फर्म ए के लिए तो सेल है, लेकिन फर्म बी के लिए क्या बन जाएगा, Purchase. दिस इज ऑल्सो इंटरलिंक्ड। ओके, अब यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ फर्म भी तो दिया ही नहीं हुआ है, तो इंपोर्ट्स तो नहीं दिए, पर यहाँ पे डोमेस्टिक परचेस तो दी हुई है, तो वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए विद द एग्जांपल ऑफ दिस। तो यहाँ के लिए सेल है, लेकिन यहाँ के लिए वही चीज क्या बन जाएगी, परचेज। सो एज सुन एज आई विल गेट दोस परचेज, नाउ आई विल गेट व्हाट, द ओवरऑल वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी।
अब तो ये तो ओवरऑल एडिशन आ गए, दैट इज 620 एज वेल एज 120। अब अपने को सिर्फ जीडीपी निकालना हो ना, तो जीडीपी आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, क्योंकि फॉर्म ए ने इतना हाँ ऐड करा, फॉर्म बी ने इतना ऐड करा। एक्चुअली देखा जाए तो ये जीडीपी बाय फॉर्म सी है। अपने का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल गिव अस व्हाट? जीडीपी एट GDP at एमपी। MP. तो जीडीपी एट एमपी ए का भी है मेरे पास और बी का भी है, और बोला है कि इकोनॉमी में कितनी फॉर्म्स हैं? सिर्फ दो ही फॉर्म्स हैं। दो. तो इन दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आंसर बन जाएगा मेरे लिए? 620 प्लस 160, 780. 780 क्या बन जाएगा मेरा? ओवरऑल जीडीपी GDP at एट MP. एमपी। Okay, so with this let us conclude that is GDP at MP यहाँ पे आ जाएगा value added by firm A plus value added by firm B, which is 780. Okay, I hope the session was interesting. Thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you, listeners.